My name is Nausheen, as you all know. I am from Allahabad, Uttar Pradesh, and my initial schooling was from Allahabad only. And also, I have completed graduation and post-graduation from University of Allahabad in 2015 and 2017, respectively. And after that, I started preparing for ISS from 2017. And in 2019, I have taken admission in MPhil in Delhi University and completed it during my training of ISS. Because of COVID, it got delayed. So, मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद then I started preparing for ISS, and I also have Inspire Fellowship because I have secured highest mark in post graduation. So I have Inspired Fellowship. So I have applied for PhD also in 2019. I have started applying for PhD, and during that time I got admission in MPhil in Delhi University, and I started doing MPhil with preparation of ISS, and उसके बाद I got selected in DSSB examination, which is for the post of statistical assistant. It is a grade B post. So I got selected in that, and I have joined the service in 2021, and I worked there for 6 months before joining ISS. When I have given my interview for this examination in which I got selected, I was working as assistant statistical assistant in GTB Hospital, Government of NCT of Delhi. So this is my brief journey, and in detail I'll tell in later when I take later questions. In detail I'll tell about how I started preparing for it. First of all, I would take FAQ, which is shared by this channel, one by one. So first is my introduction, which I have already given. Uh, then second is UPSC journey. As you all know, I have started preparing for it in 2017, and I have given my first attempt in 2018. But in this attempt, I couldn't clear the written examination. So I've given again my second attempt in 2019, and I cleared the written examination first step, and I have appeared for interview, but couldn't make it to the final list in 2019. Then in third attempt, I got selected finally in ISS, Indian Statistical Services, in 2020. So this was my first attempt, and I have appeared for interview in two attempt. अ, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी कहीं से भी, और मैंने सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, बट जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि एवरी ईयर आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माय मार्क्स। सो दिस वाज द पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर मी टू कीप डूइंग प्रिपरेशन विदाउट टेकिंग कोचिंग, एनी हेल्प फ्रॉम कोचिंग। सो आई हैव और थर्ड अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, देन उसके बाद तभी मेरी जॉइनिंग हो चुकी थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। तो मैंने इंटरव्यू जो है साथ ही साथ दिया। मैं तब जॉइन कर चुकी थी, मैं ऑफिस भी जाती थी। तो उसके साथ साथ ही मैंने इंटरव्यू दिया, और इसमें सिलेक्शन होने के बाद देन 1 दिसंबर 2021 को मैंने आईएसएस जॉइन किया। तो जब हमारी जॉइनिंग होती है तो सबसे पहले हम नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग के लिए जॉइनिंग होती है। तो मैंने वहाँ पे जॉइन किया था 1 दिसंबर 2021 को, और उसके बाद वो हमारी जो है पेरेंट एकेडमी है, वहीं से हमें बहुत सारी जगह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इंडिया के ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो जब हमने एनएसएसटीए में जॉइन किया तो वहाँ पे 3 मंथ्स की हमारी इन हाउस ट्रेनिंग हुई। देन हमारी ऑल इंडिया जो भी डिफरेंट एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसमें से कुछ मैं इंस्टीट्यूट के नाम मेंशन करना चाहूँगी। उसमें से जो हमने सबसे पहले हमने विज़िट किया था वो देहरादून में है, एफआरआई इंस्टीट्यूट है। देन शिमला में लेबर ब्यूरो का एक ऑफिस है, वहाँ पे हमारी 1 वीक की ट्रेनिंग हुई थी। देन वी वेंट फॉर आरबीआई ट्रेनिंग इन पुणे,
And also in Faridabad, there is an institute, NIFM, and there we went for there we went for finance training, like their topics were from the finance. So we have been to many institute during our training, and my training got completed on 4th of August 2023, and after that I got posting in MOSPI. There is a one division NSSO in which there is a one division फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। तो मेरी पोस्टिंग फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के हेडक्वार्टर में है, जिसका ऑफिस दिल्ली में ही है। एंड फर्स्ट पोस्टिंग जो होती है आईएसएस की, वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर होती है। तो मेरी अभी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है 7 अगस्त 2023 से एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और अभी मैं फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के हेडक्वार्टर में हूँ पोस्टेड। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देते हैं? तो किसी की भी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली का होता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मुझे लगता है मेरी सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, वो मेरे पेरेंट्स ने किया है। विदाउट देयर सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। सो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, देन मेरे रिलेटिव्स जो भी हैं, सिबलिंग्स हैं, नाना-नानी, तो उनको जाता है। और उसके अलावा जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं डिफरेंट स्टेप्स पे, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। तो मेरे मेरे लिए भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे और जो मेरी एमफिल की गाइड हैं, उनका भी बहुत अहम रोल रहा है मेरी सक्सेस में। देन बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे हर स्टेप में मोटिवेट किया, गाइड किया, और स्पेशली इंटरव्यू के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो इसके इंटरव्यू के लिए, कोई भी मॉक टेस्ट के लिए आपको कोचिंग जल्दी नहीं मिलती है। तो जो भी मेरे सीनियर हैं आईएसएस में, उनकी हेल्प से मैंने अपना ये इंटरव्यू प्रिपेयर किया था। सो ये इन सब लोगों ने मेरे सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इन सबको क्रेडिट जाता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट पेपर्स वन बाय वन। उसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा आईएसएस के बारे में बताना चाहती हूँ कि आईएसएस करते क्या हैं, ये होती क्या है। तो आईएसएस इज़ अ सिविल सर्विस अंडर ग्रुप ए, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और ये आईएसएस सिविल सर्विस सर्विस का सिविल सर्विस के वो पार्ट है जिसमें आपको स्टैटिस्टिक में हाई डिग्री चाहिए होती है। मीन्स आपका जो क्वालिफिकेशन है वो स्टैटिस्टिक्स में चाहिए होता है, तभी आप आईएसएस में आ सकते हो। और इसमें जो है अभी जो मैं रिक्वायरमेंट है आपको, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो अभी है, वो अभी आईएसएस में के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए है, बैचलर्स में आपका वन ऑफ द पेपर होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का। जो भी जिनके पास भी एक पेपर है बैचलर्स में, तो वो अपीयर हो सकते हैं आईएसएस के लिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आईएसएस का जो मेजर सिलेबस है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। तो अगर किसी को खुद से प्रिपेयर करना है, तो अगर उसने मास्टर्स किया है, तो उसके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है ये प्रिपेयर करना आईएसएस। तो इसलिए जो मास्टर्स इन्होंने कर रखा है, उनके लिए थोड़ा ईज़ी होगा विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम कोचिंग आईएसएस प्रिपेयर करना। अदरवाइज़ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन वन ऑफ द पेपर और इन स्टैटिस्टिक इन एट ग्रेजुएशन लेवल ही है। और थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि आईएएस ऑफ़िसर करते क्या हैं? तो उसमें ये है कि जो भी हमारे डिफरेंट सर्वेज़ होते हैं, जिसको मॉस्पी कंडक्ट करती है, तो उनके जो है सर्वे से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, वो सारा आईएएस ऑफ़िसर ही देखते हैं। उसके अलावा जितनी अदर अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल विंग हर मिनिस्ट्री में होती है। तो उसमें भी लोग जो है हमारी पोस्टिंग होती है, उसमें भी आईएएस की पोस्टिंग होती है। और आईएसएस का मेन काम होता है कि अगर कोई जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उनके बेसिस पे ही गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ बनती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और उनका कितना इम्पैक्ट हुआ है पॉलिसी का, कितने लोगों को हेल्प मिली है, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी मेजर हम डेटा के बेसिस पे ही करते हैं कि कोई पॉलिसी लॉन्च हुई, उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट करा, उसके से रिलेटेड इंडिकेटर के बेसिस पे, और उससे असेस हो जाता है कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है हमारी पॉलिसीज़ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एज़ एन आईएएस ऑफ़िसर आपको करनी होती है।
और मैंने आईएसएस क्यों चूज करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका एक मेन रीजन ये था कि मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे ये सब्जेक्ट अपना ड्रॉप नहीं करना था। और मुझे गवर्नमेंट सिस्टम में जाना था, जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं या लोगों के लिए काम कर सकूं बेसिकली। तो इसलिए दोनों का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप गवर्नमेंट सिस्टम में जाके विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो आईएसएस ही एक ऐसी सर्विस है जो आपको यह जो है अपॉर्चुनिटी देती है। तो दैट इज व्हाई आई सेलेक्टेड आईएसएस। और इसके बाद जो है हमारी जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मॉसपी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एग्जाम जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी कंडक्ट करती है। ये एग्जाम वंस इन अ ईयर होता है। और इसके जो टोटल एग्जाम के मार्क्स हैं वो 1200 के होता है, जिसमें 1000 का 6 थ्योरी पेपर्स होते हैं और 200 का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें दो ही स्टेप होते हैं आईएसएस के एग्जाम में। फर्स्ट इज रिटन एग्जामिनेशन एंड सेकेंड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये टोटल 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें 1000 मार्क्स के जो 6 थ्योरी पेपर्स हैं उसमें फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल इंग्लिश का होता है 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर जनरल साइंस जीएस का होता है 100 मार्क्स का। देन 4 पेपर आपके स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, 200 मार्क्स के दो सारे पेपर्स होते हैं। और देन 200 मार्क्स का आपको पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो विच इज अ सेकेंड स्टेप। अब मैं इन सारे पेपर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगी और कौन-कौन से बुक और कौन से सोर्सेज मैंने यूज किए हैं इनकी प्रिपरेशन में, वो उसके बारे में बताऊंगी। उसके पहले एक ये जो है मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि उन्हें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि ये एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग अगर किसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इश्यू आ रहा है या किसी को लगता है कि वो जो है टाइम टेबल जो बना रहे हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोचिंग उसमें हेल्प करती है आपकी रेगुलैरिटी मेंटेन करने में। तो अगर आपको ये लगता है कि आप ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोचिंग की हेल्प ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले रहे हैं, रेगुलैरिटी मेंटेन हो जा रही है, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक कोचिंग फॉर क्लियरिंग आईएसएस। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। अ, उसके अलावा जो है आईएसएस के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज़ ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स के सोर्सेज़ नहीं मिलेंगे जो आपको कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है आईएसएस के लिए, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की नोट्स होती हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, उनको फॉलो करना चाहिए। मैंने अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भी मेरी नोट्स थी, उसको मैंने फॉलो किया। देन उसके बाद जो है कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ भी मिले, जिसके बारे में मैं अभी बताऊँगी आप सबको, वो मैंने फ़ॉलो किया। और उसके अलावा कुछ बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल थी, उनको फ़ॉलो किया। तो मेरे लिए जो है ये सारी चीज़ें सफिशिएंट थी और मुझे कोई कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करने में कोई इश्यू नहीं आता था, इसलिए मैंने कोचिंग लेने का नहीं सोचा। पर ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या बेटर है, वो अपना सोच करके ये डिसाइड कर सकता है कि उसे कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है। तो जो है सबसे पहले मैं पेपर 1 जो कि जनरल इंग्लिश है उसके बारे में बात करूँगी। जनरल इंग्लिश के पेपर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं मैं वो थोड़ा-सा बता देती हूँ। इसमें आता है एसे लिखने को आता है, फिर देन प्रेसिज़ राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है और कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जिनको अपने सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ करना होता है कि उनकी मीनिंग एग्ज़ैक्टली क्लियर हो जाए कि है क्या। और उस वर्ड्स की मीनिंग नहीं लिखनी होती है, उनको सेंटेंस में यूज़ करके मीनिंग आपको दिखानी होती है कि इसकी ये मीनिंग है। तो देन इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ दिए होते हैं जिनकी आपको मीनिंग समझते हुए उनको भी सेंटेंसेस में अपने यूज़ करना होता है। और देन लास्ट में आता है सेंटेंस करेक्शन। कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको रिफ्रेश करके करेक्ट करके आपको लिखना होता है। तो ये 6 टाइप्स के क्वेश्चन्स आते हैं जनरल इंग्लिश में। तो इसके लिए जैसे एसे का पार्ट है, एसे में तो आप जो है सारे ज़्यादातर चीज़ें करंट अफेयर से टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं एसे के। तो आप जब करंट अफेयर्स फॉलो करते हो या न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, तो एसे का बहुत सारा आपको टॉपिक्स उसमें कंटेंट मिलता रहता है। और आईएसएस को क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर एक डेली पढ़ना होगा और करंट अफेयर्स का कोई मंथली कंपाइलेशन
आपको फॉलो करना होगा, जिससे आपका जीएस और इंग्लिश दोनों का ही पेपर कब तैयार हो सके। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, और इंडियन एक्सप्रेस में भी सारे पेजेस नहीं पढ़ने होते आपको। आपको फर्स्ट पेज पढ़ लेना है, जो करंट अफेयर्स का होता है, जो करंट न्यूज़ का होता है। देन एक पेज होता है एडिटोरियल सेक्शन, उसको आपको पढ़ लेना होता है। और देन इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है, वो वाले पेज आपको पढ़ने होते हैं। यही कुछ पेजेस होते हैं सिलेक्टेड, वो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको इसको रेगुलर पढ़ना होगा। और करंट अफेयर्स का बहुत सारी कोचिंग का, उसके अलावा मैगज़ीन्स कुछ आती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, और इनका मंथली कंपाइलेशन आता है, तो वो एक आपको फ़ॉलो करना होता है। और ये ध्यान रखना है कि आईएसएस का जो मीडियम है, वो इंग्लिश ही होता है, इसलिए इंग्लिश की ही कोई मैगज़ीन आप फ़ॉलो करें, तो जिससे आपको ईज़ी होगा एग्ज़ाम में लिखने में। अदरवाइज़ अगर आप हिंदी की कोई मैगज़ीन पढ़ते या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको फिर उसको एग्ज़ाम में लिखने में थोड़ी इश्यूज़ आएँगे, जो कंटेंट होगा आपका। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर एक इंडियन एक्सप्रेस आप फ़ॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा द हिंदू आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। और एक मंथली कंपाइलेशन आपको करंट अफेयर्स की फ़ॉलो करनी है। तो इंग्लिश का जो एसे पार्ट है, वो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स जो मंथली कंपाइलेशन होता है, उससे जो है काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। उसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे जनरली एसे आते ही हैं, जैसे वुमेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स से है, सोशल मीडिया के यूज़ हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स करंट में चल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड एनवायरनमेंट है, इन सब से रिलेटेड जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एसे आने की, इन सब से टॉपिक से। तो आप उसके लिए कुछ-कुछ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, कुछ-कुछ एसेज़। और एसे का जो है 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके लिखना होता है। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, देन उसका बॉडी जो है, जिसमें आप बताओगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और देन लास्ट में कंक्लूजन, कि जो आपने इतनी सारी चीज़ें ऊपर बोली हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह से आपको अपना एसे जो है एसे का वो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है। उसके अलावा प्रेसिज़ राइटिंग है, जो एक पैराग्राफ होता है बड़ा-सा, उसको 1/3 उसमें वर्ड्स में लिखना होता है, तो उसके लिए बॉक्सेस बने होते हैं। तो हर एक बॉक्स में 1 वर्ड लिखना होता है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए, जैसे प्रेसिज़ राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, और ये जो सिनोनिम्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज़ है, इसके लिए एक बुक आती है, जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, इसको मैंने फ़ॉलो किया था। ये काफ़ी हेल्पफुल बुक है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो यही मेरे जो सोर्सेज़ है, एक ये जनरल इंग्लिश की बुक और इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स। ये जनरल इंग्लिश के लिए मेरे लिए सफिशिएंट रहे हैं। और जीएस की बात करें तो न्यूज़पेपर और ये करंट अफेयर्स तो आपका मैंडेटरी है जीएस के लिए भी, तो उससे हेल्प लेनी ही है। उसके अलावा आपका जो जीएस का पेपर होता है, वो 4 पार्ट्स में होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग-अलग चीज़ें फ़ॉलो करनी होंगी। तो मैंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फ़ॉलो किया था फ्रॉम 6th टू 12th। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है इंडियन पॉलिटी, उसको फॉलो किया था। वो बुक बहुत वास्ट है, उसके सारे टॉपिक्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं, तो उसमें से आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं, और आप उन्हीं को उस बुक से पढ़ सकते हैं। और जो है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री में जो 3 पार्ट्स होते हैं, तो तीनों पार्ट्स के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी, और ज्योग्राफी के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाइलाइट करना चाहूँगी कि मैंने ओल्ड एनसीईआरटी फ़ॉलो करी थी। अगर आप चाहें तो न्यू एनसीईआरटी भी फ़ॉलो कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे, तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफ़र करूँगी। तो ये तो जनरल साइंस का था। इसमें एक और पार्ट आता है इकोनॉमिक्स का, जिसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स को मैंने करंट अफ़ेयर्स से ही जितना टॉपिक्स है वही प्रिपेयर किया था, और वो मेरे लिए सफिशिएंट था। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और हाइलाइट करना चाहूँगी, जो इंग्लिश और जीएस का पार्ट होता है, इसकी कट ऑफ जो है, अगर आप इंटरव्यू में कॉल तभी आती है जब आप इसकी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाते हो, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। तो इंग्लिश और जीएस का पेपर क्वालिफाइंग नेचर को होता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे आप ये पेपर्स क्वालीफाई कर पाओ, तभी आपको इंटरव्यू कॉल कॉल आएगी। उसके बाद जो है, देन देयर आर 4 पेपर्स इन स्टैटिस्टिक्स। So, 2 papers are of objective nature and 2 papers are of subjective nature. फर्स्ट 2 पेपर्स जो सेकंड डे होते हैं,
एग्ज़ाम उस वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं वो लीनियर मॉडल, इन्फरेंस अ, सॉरी फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं वो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग है। ये 4 पार्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के 4 पार्ट्स होते हैं लीनियर मॉडल्स, इन्फरेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों पेपर के लिए कुछ बुक्स तो कॉमन रहेंगी जैसे कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर। ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए भी हेल्पफुल है और इन्फरेंस एंड टेस्टिंग के लिए भी है। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस बाय कैसलर एंड बर्जर ये भी दोनों जो है ये इस इन्फ्लुएंस और टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो मैंने बुक फॉलो करी थी एक, वो एससी सक्सेना की है, न्यूमेरिकल मेथड्स बाय एससी सक्सेना। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। और कंप्यूटर्स के लिए मैंने फॉलो करी थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बाय ई बालागुरु स्वामी। सो ये जो है फर्स्ट पेपर के लिए फॉलो किया था। देन सेकंड पेपर में स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए गुप्ता एंड कपूर तो फॉलो किया ही था। उसके अलावा आप मनोज कुमार श्रीवास्तव एंड नम्रता श्रीवास्तव की एक बुक आती है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की भी और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की भी, यह फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है क्योंकि इसके एग्जाम्पल से मुझे बहुत सारे मेरे डाउट्स जो है क्लियर हो गए थे। तो आप इनके एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनमें से कुछ टॉपिक्स के लिए एनपीटीईएल जो एक चैनल है यूट्यूब पर उसके लेक्चर्स की भी हेल्प ली थी। आप एनपीटीईएल पर सर्च करके इन टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स वहाँ पे देख सकते हो। वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने इस जैम और आईएसएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको आईएसएस के जितने भी अभी तक अवेलेबल हैं 2016 से जो फॉर्मेट चेंज हुआ था आईएसएस का वो 2016 में चेंज हुआ था। तब से अब तक जो भी पेपर्स अवेलेबल हैं तो उनके सारे पेपर्स की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इसमें सेकंड पेपर में एक पार्ट है। इसके लिए आपको मॉस्पी की साइट रेगुलरली विजिट करनी होगी क्योंकि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट आपको ऐसे कहीं बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको इसके मॉस्पी की वेबसाइट पे जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, जो भी सर्वे के रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको अपडेट लेते रहना होगा। और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को मैंने ऐसे पढ़ा था कि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको एनालाइज़ किया, देन उससे टॉपिक्स नोट किए और फिर उस टॉपिक को मॉस्पी के वेबसाइट पे जा कर के या गूगल कर के पढ़ा था। तो आप लोग भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए। देन थर्ड पेपर आता है। थर्ड पेपर में 4 पार्ट्स होते हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में 2 पार्ट होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड डिमांड एनालिसिस। तो ये बहुत बड़ा पेपर होता है और थर्ड डे आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, तो आप मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैंने इसमें से सिर्फ 2 ही पार्ट तैयार किए थे, सैंपलिंग टेक्निक्स, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक्स। और ये सफिशिएंट होते हैं, अगर आप इसमें से सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस एंड डिमांड एनालिसिस जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसको नहीं प्रिपेयर किया था। उसको बस उतना ही पढ़ा था जितना गुप्ता एंड कपूर की एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उसमें जितना पार्ट दिया हुआ था बस उतना ही पढ़ा था। जो कि वो जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए चाहिए था मुझे, तो बस मैंने उतना पढ़ा था। तो मैंने सैंपलिंग बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। तो सैंपलिंग टेक्निक्स बाय सृजन पाल सिंह एक बुक है, सृजन पाल सिंह सर की, ये मैंने फॉलो करी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा मैंने एनपीटीईएल पे सलभ सर के लेक्चर को फॉलो किया था फॉर सैंपलिंग थ्योरी एज़ वेल एज़ फॉर रिग्रेशन एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक थ्योरी। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने दामोदर एंड गुजराती की एक बुक है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, उसको फॉलो किया था। और यूनिवर्सिटी की जो मेरी नोट्स थी जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने उसको भी फॉलो किया था। उसके देन वी विल मूव टू फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर में मेरे जो ऑप्शंस थे वो वाइटल डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स था और मल्टीवेरिएट एनालिसिस था। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने अमित मित्रा सर का लेक्चर है, आईआईटी कानपुर के ये प्रोफेसर है, इनका लेक्चर है एनपीटीईएल पे। बहुत अच्छा लेक्चर है वो, उसको मैंने फॉलो किया था मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए। और उसके अलावा एक बुक आती है जॉनसन एंड जॉनसन की अप्लाइड मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
तो इस बुक की हेल्प से मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिले थे जो कि मैंने सॉल्व किए थे, जिससे मुझे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प मिली थी। तो ये 2 सोर्सेज़ हैं जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने यूज़ किए थे। सेकंड ऑप्शन था मेरा डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। इसके लिए मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता कपूर की फॉलो किया था, जिसमें चैप्टर जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का है उससे पढ़ा था। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं मिलते हैं जो गुप्ता एंड कपूर है, तो इसके लिए मैंने एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज बाय आशा भिंडे एंड तारा कनेटकर। तो इस बुक में कुछ टॉपिक्स होते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड, उसके लिए मैंने ये बुक फॉलो करी थी। तो ये 2 सोर्सेज़ मैंने वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो किए थे। तो ये तो सारे पेपर्स की बात हो गई, जो है थ्योरी पेपर्स जो भी आते हैं। उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सोर्सेज़ और बुक लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, आंसर कैसे फ्रेम करें? तो आंसर फ्रेम करने का जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जीएस के लिए या स्टैटिस्टिक्स के लिए भी, तो उसमें यही था कि जीएस के लिए जो स्ट्रैटेजी थी मेरी कि कोई भी आंसर लिखना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, देन उसके बॉडी में जो भी उसके बारे में आपको पता है, उसको लिखना है और देन लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, जिससे कि आप जो भी आपने ऊपर इतनी सारी चीज़ें बताई है, उससे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो आपको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हो। मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जीएस के लिए। स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ऐसे बहुत जो है थ्योरेटिकल नहीं आते हैं, मैथमेटिकल आते हैं। तो उसमें तो जो भी चीज़ें हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी लिखनी ही हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए तो कोई ऐसे मेरा स्पेशल कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करी? हाँ, तो इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलता है उसके साथ ही आंसर शीट होती है, तो बहुत लिमिटेड स्पेस होता है। तो मुझे बहुत इश्यूज़ आते थे अपने आंसर को उस लिमिटेड स्पेस में पूरी तरह से फिट करने में, कि आपको सारी चीज़ें लिखनी भी है और आपका आंसर कंप्लीट भी होना चाहिए और स्पेस भी आपको उतना ही यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने जो है जब मेरा ये फाइनल अटेम्प्ट हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इस अटेम्प्ट में मैंने एक यूपीएससी की बुकलेट आती है जो आपको बहुत सारी बुक शॉप पे मिल जाएगी। वो पूरी आईएसएस के उस आईएसएस का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसी के फॉर्मेट में होती है। तो मैंने वो बुकलेट खरीदी और उसपे मैं अपने आंसर की प्रैक्टिस करती थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लिया और उसमें 3 आवर्स के लिए मैंने सेट कर लिया टाइमर और फिर मैं 3 आवर्स में वो क्वेश्चन को उतने ही स्पेस में क्वेश्चन पेपर को पूरा लिखती थी। जिससे मेरा एक तो टाइम मैनेज हो पा रहा कि नहीं ये आइडिया लग जाता था, सेकंड मेरा स्पेस का जो इश्यू था कि मुझे इतने ही स्पेस में सारी चीज़ें लिखनी है, वो भी मेरी प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो गया कि कम स्पेस में कैसे पूरा आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर। तो मैंने ये चीज़ करी, आप भी ये फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें? इसके लिए कोई जीएस में ही हमें इसकी नीड होती है। तो वही मैंने बताया कि जो भी आप लिख रहे हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो देन कंक्लूजन में आप ऐसे लिखो कि आपका जो भी एटीट्यूड है या जो भी आप सोचते हो वे ऑफ थिंकिंग है वो क्लियरली निकल के उस आंसर में आए। तो यही एक मेथड था जो मैंने ऑप्ट किया था। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्प मिलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए और उनसे आप शॉर्ट नोट बना के रख सकते हो, जिसको आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ कर सकते हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो ज़रूर करने चाहिए। मेरे से एक चीज़ छूट गई बताना जो मुझे इनिशियली बताना था कि आप तैयारी स्टार्ट कैसे करो? तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है वो ये है कि आप सिलेबस इसका लो आईएसएस का और उसको अच्छे से एनालाइज करो। उसमें आप देखो कि आपका क्या चीज़ स्ट्रेंथ पार्ट है, क्या आपका जो है वीक पार्ट है। देन सॉरी देन आप जो स्ट्रेंथ है आपकी वो ऑलरेडी आपको अच्छे से आता है, उसमें थोड़ा कम मेहनत की ज़रूरत होगी तो आप उसको अलग कर लो और जो आपका वीक पार्ट है उसको पहले पढ़ना स्टार्ट करो आप। तो आपको पहले सबसे पहले सिलेबस एनालाइज़ करना है, उसमें से देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेसेस है और देन आपको ये भी चीज़ देखनी है कि जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन वो 50% 50 टू 60% मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा।
और एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ नहीं हो पाता है पूरा, तो आप पूरा लिख भी नहीं पाते हो। तो ये एक मिस्टेक थी जो मैंने करी थी कि मैं प फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के उसमें मैं मुझे लगा कि मुझे सारा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए। तो मैंने पूरा सिलेबस का कंटेंट ढूँढा और वो जो कि मिलता नहीं है ईज़िली, और उस चक्कर में ही मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया और एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा रिवीज़न भी नहीं हो पाया। इस वज़ह से मैं अच्छे से अपना आंसर वहाँ पे लिख नहीं पाई, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम पे, रिटन भी नहीं क्लियर हुआ था। तो ये एक मिस्टेक थी। तो आप स्मार्ट स्टडी करो, आपको जितना लगता है, जितने क्वेश्चन्स या जितने टॉपिक्स बार-बार आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करो। जो टॉपिक्स कभी आए हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आप उनको स्किप कर सकते हो। सॉरी। आप उनको स्किप कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो सिलेबस सबसे पहले एनालाइज़ करना, देन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू डैफ कैसे बनाएँ? तो हमारे जो डैफ में आईएसएस के डैफ में 2 मेन पॉइंट होते हैं, वो एक ये है कि सॉरी, आईएसएस के डैफ में जो 2 मेन पॉइंट होते हैं, उसमें एक ये होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं, वो पूछता है, और आपका कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, तो उसके बारे में भी एक कॉलम होता है, जहाँ पे आपको लिखना होता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी चाहिए। जैसे कि आप वही हॉबीज़ डालें जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। ऐसा कुछ ना डाल दें कि जो आपने किया नहीं हो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और फिर उन इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपने ये हॉबी बना के डाली है, आप एक्चुअली इस चीज़ को परस्यू करते हो। तो जो भी हॉबीज़ हैं, आप उसको डाल सकते हो। जैसे कि मैंने अपने डैफ में मेरी हॉबी है कुकिंग, तो मैंने कुकिंग ही मेंशन किया था। मैं 2 बार इंटरव्यू में अपीयर हुई हूँ, पर मेरे से कभी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं गया। पर वैसे मोस्टली पूछते हैं हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स इसके प्रिपेयर किए थे कुकिंग से रिलेटेड। तो आपकी जो भी हॉबी है उसको आप मेंशन करिए और आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। उसके अलावा एक कॉलम होता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का, जिसमें आपका कुछ भी एकेडमिक्स या अदरवाइज़ कोई भी अचीवमेंट रहा हो तो आप मेंशन कर सकते हो। तो आप में भी उसको उसमें भी आपको वही चीज़ें डालनी है जो आपने एक्चुअल में अचीव किया है। और पूरे डैफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको जो आप सर्टिफिकेट बेस्ड है या जो डॉक्यूमेंट में है, वही मेंशन करें आप। अदरवाइज़ इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, पर डैफ में आपको जो भी है वो आप अच्छे से भर दीजिए और उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, मेरी यही एडवाइस है। एक इंटरव्यू के बीच में बिल्कुल सॉरी कह सकते हैं आप, अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई हो, तो आप सॉरी कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सॉरी नहीं कह सकते। इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं वन बाय वन लूँगी। अब डेफ की बात हो गई, देन इंटरव्यू बोर्ड या पैनल के बारे में बताइए। तो इंटरव्यू बोर्ड में जनरली 4 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो कि यूपीएससी का मेंबर होता है, एंड अदर 3 मेंबर्स मे बी फ्रॉम एकेडमिक्स एंड मे बी फ्रॉम सर्विसेज लाइक आईएएस और एनी अदर सर्विस। वन मस्ट बी एकेडमिक्स, दैट इज आई नो फॉर श्योर। तो 4 मेंबर्स का पैनल होता है और जनरली इंटरव्यू जो होता है वो 25 टू 30 मिनट्स चलता है किसी भी कैंडिडेट का। और उसके बाद जो है इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में बताइए। तो ड्रेस बहुत ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका इंटरव्यू के लिए। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो वैसे ही आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। तो फॉर बॉयज इट इज एडवाइजेबल टू वियर सूट विथ फॉर्मल शूज एंड टाई, एंड हेयर भी आपके प्रॉपर्ली कॉम्ब होने चाहिए। और फॉर गर्ल्स इट इज एडवाइजेबल टू वियर साड़ी। सो कोई बहुत सारे लोग नहीं पहन पाते हैं साड़ी या दिक्कत होती है, तो वो सूट प्रेफर पहन सकते हैं, पर प्रेफर आपको साड़ी करना है और आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, तो देन कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक फॉर्मल ड्रेस कोड आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो है वही फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो। और तो ये ड्रेस कोड के बारे में हो गया। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें? इंटरव्यू देखिए, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है, और जो इंटरव्यू है वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि इसको इंटरव्यू मेंशन भी नहीं किया होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट ही मेंशन करते हैं।
तो इन जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होके जाना है, आपको बैठने का, उठने का तरीका जो भी मैनर है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। आप मिरर के सामने अपना इंट्रो देने की प्रैक्टिस कर सकते हो, बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन सबको कंट्रोल करने की या कैसा आपका जेस्चर होना चाहिए उसकी प्रैक्टिस आप किसी फ्रेंड के सामने, किसी सीनियर के साथ या मिरर के सामने भी आप कर सकते हो। थोड़ा-सा आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। उसके अलावा जो है आप जो भी आंसर दे रहे हो उनको कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सारा क्वेश्चन आता हो, पर अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो तो वो आपका गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जो भी आपको पता हो वही आंसर दीजिए, नहीं पता हो आप सॉरी स बोल दीजिए। बहुत सारे आईएएस के इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, मतलब सर्वे टेक्निक से रिलेटेड, या वो आपको सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे इसमें क्या टेक्निक लगानी, क्या कर सकते हैं। तो वो उस तरह के भी क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने होते हैं। और जितना भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है उसको उसके क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है उस टाइम पे। कोई ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूज़ में है तो उनको तैयार कर लीजिए आप। और जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स का है थ्योरी उसको रिवाइज़ करके जाइए बहुत अच्छे से। इंटरव्यू को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका कोर स्टैट्स का पार्ट हो गया, सेकंड आपका हो गया जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड, और थर्ड आपका हो गया पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जो आपने डैफ में अपनी इंफॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन तीनों पार्ट को आपको तैयार करना होता है। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है और दोनों बार मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, जो है। फर्स्ट टाइम in 2019 when I gave my interview, it was on 25th December 2019। तो उस टाइम पे मैंने सूट ही पहना था क्योंकि तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं सूट पहन के गई थी और इंटरव्यू अच्छा था ओवरऑल। पर मुझे जो है मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ सकी। तो उस टाइम पे भी मुझसे यही पूछा गया था कि आप अभी क्या कर रही हैं, और जो है मैं एमफिल कर रही थी तो मैंने उसके बारे में बताया, तो एमफिल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चंस वैसे थे जैसे कि आप जॉब अगर आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आप कैसे हैंडल करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ थे। देन इन 2020 व्हेन आई अगेन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, तो उस टाइम पे मुझसे फिर यही क्वेश्चन सबसे पहले हुआ कि आप अभी क्या कर रही हो, तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट। तो मैंने उनके बारे में बताया, तो वहाँ का वो वर्क प्रोफाइल पूछा कि आपका जो है क्या चीज़ें हैं, आपको कैसा काम है, वहाँ पे क्या करना होता है। फिर एमफिल भी मेरा चल ही रहा था तो एमफिल के बारे में भी पूछी उन्होंने कुछ चीज़ें। कुछ स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसी तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और आपको वो बहुत कंफर्टेबल कर देंगे। कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, बस ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल बात कर रहे हो, जो है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा इंटरव्यू का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस प्रोफाइल और वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया कि आईएसएस को क्या करना होता है, किस तरह का काम होता है। डेटा रिलेटेड ही हमारा काम होता है, तो जो है यही हमें करना होता है। और उसके बाद मिस्टेक्स कौन-कौन सी करी हैं। तो पहली मिस्टेक मैंने जैसे कि बता दी कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करी थी। तो वो एक मिस्टेक थी मेरी, जो कि नहीं करनी चाहिए। आप पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। जो टॉपिक्स बार-बार आते हैं, आप उनको कवर करो, अच्छे से कवर करो। उसमें जब क्वेश्चन्स आएँ, तो वो आपसे ऐसा ना हो कि वो आप ना कर पाएँ। तो उनमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये एक मिस्टेक थी मेरे से जो हुई। उसके अलावा मैं अपनी मिस्टेक से ही मैंने अपना इम्प्रूवमेंट्स किए क्योंकि मैं कोचिंग नहीं करती थी, कोई एनालिसिस कोई और करके देने वाला नहीं था। तो मेरा जो ईयर बाय ईयर जो भी मेरे अटेम्प्ट्स होते थे, फिर उनके मार्क्स आते हैं, यूपीएससी मार्क्स पब्लिश करती है, तो मैं उसकी हेल्प से मैं अपना क्वेश्चन पेपर देखती थी और मैंने क्या गलती की है, कहाँ किस पार्ट पे मेरे से गलती हो रही है, कौन-सा टॉपिक ऐसा है जो जिससे मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज़ करती थी और उसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की मैं तैयारी स्टार्ट करती थी। तो आप भी ये कर सकते हो, अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करने से आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएँगी। कोई और एस्पिरेंट से आप पूछोगे या किसी और से, तो वो आपको उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो।
तो इसका एक ही बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप अपना पेपर एनालाइज़ करो और उससे आप अपनी मिस्टेक्स देखो और उनको दोबारा ना करो। उसके अलावा मेरे से और एक मिस्टेक हुई थी जो आईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिवीज़न। तो मैं फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना था, इस वज़ह से मेरा रिवीज़न नहीं हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीज़न नहीं हो पाया था मेरा। तो देन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे रिवीज़न बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने पूरे साल में 4 रिवीज़न किए थे। तो पहला रिवीज़न तो आप 3 मंथ्स का कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट 2 रिवीज़न है वो एक 15 डेज़ पे किया था और एक 1 वीक के पहले किया था। क्योंकि ला एग्ज़ाम 3 दिन लगातार होता है तो आपको रिकॉल करने में इश्यूज़ आते हैं बहुत सारे टॉपिक्स। तो इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करना होगा। फिर एग्ज़ाम के दिन भी मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो मैं रिवाइज़ करती जाती थी, उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीज़न के में मेरे बहुत काम आए। जब 3 दिन आपको लगातार पेपर हो रहा होता है तो आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है रिवाइज़ करने का, तो वो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। तो आप वो एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपना रिवीजन के साथ-साथ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और उसको आप एग्ज़ाम के टाइम पे जो रिवीजन होता है उसमें यूज़ कर सकते हो। पर मैं यही एडवाइस करूँगी कि 3 से 4 बार आप पूरा सिलेबस ज़रूर रिवाइज़ करिए। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये आईएएस क्रैक करने में। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने करी हैं। तो इनसे ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे आप ये मिस्टेक ना करो और आपका अटेम्प्ट बच सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन-सी वेबसाइट यूज़फुल है? आईएसएस के लिए तो मॉसपी की वेबसाइट बहुत यूज़फुल है, आपको रेगुलरली विज़िट करना चाहिए। तो जो भी उसमें मॉसपी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या कोई सर्वे रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपको वो अपडेट्स वहाँ से मिलती रहेंगी। तो आपको वो फ्रीक्वेंटली विज़िट करना चाहिए। उसके अलावा नीति आयोग की भी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारा जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काम होता है। बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो वो भी मैं विज़िट करती थी कभी-कभी नीति आयोग की भी वेबसाइट। और इस तरह की जो भी जहाँ पे भी आपको कुछ लगता है कि जो स्टैट से रिलेटेड है, जिस भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, वो आप विज़िट कर सकते हो। सिलेबस एनालाइज़ कैसे करें, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको एनालाइज़ करना हो, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है वहाँ से। खुद के नोट्स बनाएँ या दूसरों को नोट्स पढ़ें, तो मैं तो खुद के नोट्स बनाना प्रेफ़र करती थी। जो भी रिसोर्सेज़ हैं, ये डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं, आप हर एक से बार-बार नहीं पढ़ सकते हो, आप बार रिवाइज़ करने के टाइम आप सारे रिसोर्सेज़ को आप नहीं देख सकते हो, तो आपको एक अपनी नोट्स बना लेनी चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए जहाँ का भी कंटेंट आपको बेस्ट लगता है, आप उसको यूज़ करते हुए एक नोट्स अपनी प्रिपेयर कर लो। वो आपके जितने भी आप अटेम्प्ट दोगे, उसमें काम आएगी। तो अपनी नोट्स बनाना चाहिए, मैं यही एडवाइस करूँगी। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक, देन नोट्स पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं और एक टेक्स्ट बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा तो आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक आपको रिवीजन के टाइम पे डिफरेंट टेक्स्ट बुक एक्सेस करना ईज़ी नहीं होगा, तो आप अपनी नोट्स बना लो और उसी से पढ़ो। नोट्स कैसे बनाएँ? तो नोट्स जो भी सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाते जाएँ। उसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन्स आते हैं आईएसएस के 3rd और 4th पेपर में सब्जेक्टिव पेपर्स में मैंने उनको भी अपनी नोट्स में इंक्लूड किया था उन क्वेश्चन्स के सॉल्यूशंस को। क्योंकि वो जल्दी मिलते नहीं हैं, तो जो भी क्वेश्चन्स के सॉल्यूशंस थे वो भी मैं अपनी नोट्स में हर टॉपिक के बाद जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन्स होते थे न्यूमेरिकल उनको मैं उसी नोट्स में इंक्लूड कर लिए थे, जिससे जब भी मैं रिवीज़न करती थी, तो साथ-साथ मेरा न्यूमेरिकल का भी रिवीज़न हो जाता था। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो और नोट्स आपकी ना सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आपको उसी एक नोट्स में मिल जाएँ। क कोई और बुक बार-बार रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई और रिसोर्स बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा जो है यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आईएसएस में एक पेपर आता है जीएस जिसमें एनसीईआरटी का यूज़ है, पर उसके लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैंने भी पढ़ी थी और मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? ये आईएएस के रिस्पेक्ट में मैं इसका रिप्लाई ये करूँगी कि
आप ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग करनी है देन वो ओके, आपको सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको कोचिंग नहीं करनी है तो फिर आपको थोड़ा-सा अपने मास्टर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस मास्टर लेवल का आता है। तो मैंने भी अपनी तैयारी जो है थोड़ा-थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ग्रेजुएशन के बाद से देखना स्टार्ट कर दिया था। जो भी मेरे सब्जेक्ट जो भी मेरे पेपर्स थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, और वो अगर आईएसएस में भी आ रहे हैं, तो मैं उसी टाइम पे साथ-साथ दोनों चीज़ें कवर करती थी, एकेडमिक्स का भी और आईएसएस का भी। तो ये स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो कर सकते हो, और मैंने अटेम्प्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही दिया है। देन करंट अफेयर्स के बारे में मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर के बारे में भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। और उसके अलावा जो है, इसकी आपको कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जल्दी नहीं मिलती, कुछ कोचिंग सभी भी कराती हैं टेस्ट सीरीज़, लेकिन वो ऐसे सबके लिए ओपन नहीं रखते हैं, जो उनके ही स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को टेस्ट सीरीज़ कराती हैं। तो अगर आपको कहीं मिलती है और आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, तो आप जॉइन कर सकते हो, पर मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास कि कहाँ से टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं इसकी। जो है, मैंने तो खुद ही प्रैक्टिस किया था फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने कितने घंटे डेली पढ़ाई की, तो इसके लिए ये है कि मैंने 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करी है आईएसएस के लिए। और फर्स्ट ईयर जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपनी नोट्स बनानी होती है। पूरा जो है आपको अपना कंटेंट तैयार करना होता है। तो आप फर्स्ट ईयर में तो 10 से 12 घंटे आपको देना चाहिए पूरी तरह से इसके लिए। तो उसके बाद आप जब आपकी एक बार नोट्स बन जाती है, तो आपको बस रिवीजन ही करना होता है, अगर अटेम्प्ट्स आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आपको देने होते हैं तो भी। तो आप जो है मैनेज कर सकते हो जॉब के साथ, लेकिन 1 साल आपको पूरी तरह से इसको देना चाहिए, और जिससे आपकी नोट्स बहुत अच्छी बन जाए और आप पूरी तरह से तैयार रहो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स भी देने के लिए। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि मुझे स्टार्ट्स लेनी थी, और उसके साथ ही कुछ ऐसा करना था, गवर्नमेंट सर्विस में जाना था, जहाँ पे मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकूँ। तो ये एक ही ऑप्शन था मेरे पास, आईएसएस, जो कि स्टैटिस्टिक्स से मैं दे सकती थी जो एग्ज़ाम। तो ये एक मोटिवेशन अपने आप में ही था। उसके अलावा मुझे जो है, कभी-कभी ऐसा होता था कि मुझे मोटिवेशन की कमी लगती थी, जब आप 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है, आपको दोबारा दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए खुद को बहुत तैयार करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा कभी लगता था, तो मैं थोड़े दिन अपनी तैयारी बंद करके कुछ और चीज़ों में ध्यान लगा देती थी, कुछ और करने लगती थी। तो फिर मुझे लगता था कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, देन मुझे सेल्फ मोटिवेशन फिर से मिल जाता था कि फिर से मुझे तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन ब्रेक हो रहा है, तो आप उनसे बात करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, या आपने किस रीज़न से ये तैयारी स्टार्ट करी थी, आप उसको रिकॉल करो, तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा। और उसके अलावा मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं करती थी, जब मुझे कभी ऐसा लगता था कि जो है मेरा मोटिवेशन काफ़ी कम हो गया है, तो उस टाइम पे मैं ये करती थी। मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था, मैं टाइम टेबल फ़ॉलो करती थी, और उस कोशिश करती थी कि मैं उस टाइम टेबल को फ़ॉलो कर सकूँ पूरी तरह से। तो लेकिन पूरी तरह से फ़ॉलो तो नहीं हो पाता कोई भी टाइम टेबल, पर आप एक आउटलाइन बना करके आप ट्राई करो कि 80 टू 90% तक हो जाए फ़ॉलो, तो वो भी एक सक्सेस ही है। और इसके अलावा जो है, टाइम टेबल में आपको रिवीजन का भी रखना होता है कि वीकली आप एक रिवीजन ज़रूर करो, जो भी आपने चीज़ें 1 वीक में पढ़ी उनको जो है वीकेंड पे आप एक बार रिवाइज़ करो, तो जिससे आपको चीज़ें रिकॉल रहेंगी लॉन्ग टाइम में। यूपीएससी के इसमें आईएएस के लिए एक ही मीडियम होता है, इंग्लिश, तो इसमें मीडियम की कोई चूज़ करने की कोई बात ही नहीं है। इंटरव्यू के लिए हाँ, ये है कि आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, पर रिटन एग्ज़ाम के लिए मीडियम आपका इंग्लिश ही होता है। इसकी तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया मैं यूज़ करती थी। मैं जो न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो उनके चैनल को मैंने फ़ॉलो कर रखा था। तो उनकी जो न्यूज़ होती है ना, वो फ़ौरन आ जाती है, उसपे कुछ भी होता है, तो उसपे अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो मुझे उससे हेल्प मिल जाती थी, डेली मुझे उसपे कुछ चीज़ें दिख जाती थी, और जो अगर मुझे कुछ लगता था इम्पोर्टेंट है, तो मैं उससे डिटेल में पढ़ लेती थी। और उससे कभी कुछ न्यूज़पेपर से आपका छूट भी गया, तो सोशल मीडिया पेजेज़ से आपको वो है दिख जाएगा, और आपको रिकॉल करने में भी ईज़ी होगा।
वो शॉर्ट में आते हैं, तो वो इस वजह से मैं फॉलो करती थी कुछ न्यूज़पेपर चैनल्स को सोशल मीडिया पे। यही सारी चीज़ें थी जो मेरी तरफ से थी। अगर अब आपके क्वेश्चंस मैं ले सकती हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन हो इनके अलावा, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। आई डोंट थिंक एनी डाउट इज़ लेफ्ट। So I think we can end this session. Thank you so much, UPSC Time, for giving me this opportunity so that I can share my strategy जिससे कि जो aspirants हैं उनको help मिले. So thank you so much.